दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है चेहरे पे मुस्कुराना, मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। Golden presents the best-selling reference books for history for classes 11th and 12th. Main features of Golden Books are: all the books are based on latest NCERT textbooks and are as per the latest syllabus of CBSE. Important points have been given for each chapter for quick revision. Solution of all the NCERT textual exercises are given. Other important questions for practice and examinations are also given in a very simple language. Objective type question bank is given, which include MCQs with answers. The Golden Books suit all the pockets and are a boon for the weak, mediocre and intelligent students alike. Buy Golden Books for your golden future. Good afternoon everybody. मैं महेश धामा गोल्डन हिंदी एडिटर और न्यू एज पब्लिशर्स की ओर से इस वेबिनार के संचालक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने इस बार अपने शैक्षणिक सत्र 23-24 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी 11-12 में कुछ परिवर्तन किए हैं। उन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए और पेपर पैटर्न में भी परिवर्तन किया है। इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए न्यू एज पब्लिशर्स ने ये एक वेबिनार रखा है जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 11th और 12th से संबंधित जो भी समस्याएं, जो भी क्वेरीज हमारे अध्यापकों की है, बच्चों की है, उनके समाधान के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया है। जैसा कि आपको पहले से ही ज्ञात है कि इस वेबिनार में मुख्य वक्ता डॉक्टर के शर्मा जी होंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपका परिचय इस वेबिनार के आयोजक और न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स के प्रबंध निदेशक श्री सौम्य गुप्ता जी से करवाना चाहूंगा। तो श्री सौम्य सर पिछले 20 वर्षों से इस पब्लिकेशन को संभाल रहे हैं और सर ने केमिकल में इंजीनियरिंग तथा पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से एमएस किया हुआ है। इनकी देखरेख में न्यू एज कंपनी दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की कर रही है। सौम्य जी का उद्देश्य न केवल एक अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तकें प्रदान करना है, बल्कि उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व वाला इंसान, आज के उस युवा बच्चे को उस आने वाले भविष्य के उस नवरत्न को बनाना चाहते हैं, जो कि आगे चल करके इस देश का भविष्य बनेंगे, इस देश को संभालेंगे। उनके अंदर सभी तरह की क्वालिटीज हो, देशभक्ति हो, कर्तव्यपरायणता हो, अपने कर्तव्य को समझे, ऐसा सौम्य जी का सपना है, ऐसा उनका एक मानना है। अब मैं श्री सौम्य गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि वे आए और कंपनी और पुस्तकों के विषय में संक्षेप में कुछ जानकारी हमें प्रदान करें। श्री सौम्य गुप्ता जी। Good afternoon, everyone. I welcome all the distinguished panelists and the participants to this webinar on the latest curriculum of history and geography issued by CBSE for classes 11th and 12th. I especially welcome Dr. K.K. Sharma ji, who will be conducting today's webinar, along with panelists who will play an important role during the course of time. Well, Golden Books, published by New Age International Publishers, are totally based on NCERT textbooks
and are one of the best-selling reference books, not only in India, but also in Middle East countries. Golden books are liked by teachers, students, and their parents alike. As we know, CBSE keeps on changing curriculum and exam pattern almost every year. Golden books are always the first ones to update the books regularly as per the latest curriculum, so that teachers and students do not face any difficulty. Our marketing offices are situated all over India, and our publishing house publishes all kinds of books for school students. Golden History and Geography reference books are published from classes 6th to 12th, and they are strictly based on the latest curriculum issued by CBSE. Revise the books from time to time as per the latest curriculum developments by CBSE. Golden Social Science workbooks are also very popular, and they are strictly based on NCERT textbooks as well. Golden also publishes Golden Pull-Out School Assignments for classes 6 to 8 standard, which are written in very simple and useful language, and we have given enough practice material for students to get high grades in the exams. Dear participants, we will be issuing an e-certificate for all the participants. To get the certificate, you will receive a feedback form on the WhatsApp message after the webinar. So do give us the feedback after the webinar and get the e-certificate. We are glad to offer you specimen copies of History and Geography for classes 11th and 12th. For that, kindly email to feedback@newagepublishers.com your school name and your address so that books can be sent by courier. I hope this webinar will enlighten us all with the latest curriculum of CBSE for History and Geography for classes 11th and 12th and will enrich you in your teaching endeavors. Thank you. थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अब मैं पैनल में हमारे साथ आज चर्चा के लिए जो जुड़ेंगे डॉक्टर यशवंत चौहान जी। डॉक्टर यशवंत चौहान जी का परिचय आपसे कराना चाहूँगा। आज की विशेष चर्चा में हमारे साथ सर रहेंगे। सर की स्कूलिंग सैनिक स्कूल से हुई है, चित्तौड़गढ़ से। MSc and PhD from University of Rajasthan, Jaipur. He is awarded degree of PhD on topic ecotourism in India. A case study of South Asia with 6 papers as published national and international journals. He expert of NTSC at work for 9 years in Bansal classes in Jaipur. He is teaching line since 2000 and presently he is working as a PGT Geography in Rukmani Birla Modern High School in Jaipur. जसवंत जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। और अब मैं इस वेबिनार के जो आज के मुख्य वक्ता है डॉक्टर के शर्मा, उनको आमंत्रित करूंगा। सर का छोटा सा परिचय मैं देता हूं। सर MA, MEd, MPhil, PhD हिस्ट्री है। 21 years experience in learning and teaching. He has worked with the Ministry of Education Government of Maldives and Denmark as education consultant, working with the Aysar School, Faridabad as a PGT history since 11 years and now. Sir, please come and ज्योग्राफी और हिस्ट्री का आज का जो टॉपिक्स है 11th-12th में जो भी चेंजेस आए हैं उनको प्लीज समझाइए और बताइए कि आने वाले समय में जो बच्चों के लिए बोर्ड ने जो चीजें रखी है उनको कैसे हम आगे बढ़ाए, कैसे उनको बच्चों को समझाए, क्या क्या उसमें करे। सर प्लीज डॉक्टर के शर्मा। सर के शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? रोहतास जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए सर। सर डॉक्टर के शर्मा जी का थोड़ा उनका डिस्टर्ब हो गया है कुछ उनकी तरफ से। शायद आप तब तक हिस्ट्री के लिए आप वो स्लाइड्स है कंटेंट की वो खोलिए और तब तक सर जुड़ रहे हैं। हिस्ट्री विषय से संबंधित कंटेंट्स को आप सामने रखिए। आदरणीय साथियों,
अभी डॉक्टर शर्मा जी, के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, उनके नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, तब तक मैं आपको बता देता हूं कि इस बार एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में काफी बड़ा चेंज किया है। एनसीईआरटी हर बार तो सीबीएसई बोलता था कि ये टॉपिक्स इस बार नहीं पूछे जाएंगे, ये टॉपिक्स नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इस बार एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स रिवाइज करके निकाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास में पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है या बच्चों के पास में पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है, तो प्लीज कृपया करके उनको कहिए कि वो नई एनसीईआरटी की बुक्स खरीद ले, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में काफी चेंजेस है। पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स अब उनमें कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, टॉपिकों के नाम बदल दिए गए हैं, और चैप्टर्स की जो सीरियल नंबर्स है वो भी काफी चेंज हो गई है। हमने गोल्डन बुक्स में पूरी तरीके से रिवाइज किया है। हर टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को भी ध्यान रख के, अगर वो नहीं है तो उसको डिलीट किया है, अगर टॉपिक्स है तो उसको सही से। मैं एक बार आपको हिस्ट्री के कंटेंट्स आपको दिखा देना चाहता हूं कि अब हिस्ट्री विषय में कौन कौन से टॉपिक्स रखे गए हैं और हमने गोल्डन में क्या क्या रखा है। तो प्लीज रोहतास जी इसको थोड़ा आगे चलाइए। तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जो पहला सेक्शन है, थीम्स इन इंडिया हिस्ट्री, उसके अंदर ये 4 थीम्स है। और नेक्स्ट आगे चलिए सर। दूसरी थीम्स के अंदर भी ये 4 थीम्स है, जो कि पहले इसमें 1-2 थीम्स जो थी एक्स्ट्रा थी, उनको डिलीट कर दिया गया। सर आगे चलिए नेक्स्ट। सेक्शन सी के अंदर जो 3rd थीम है, इसमें भी जो है आपकी 4 थीम रह गई है। तो कुल मिलाकर के 12 चैप्टर आपको बच्चों को अब कराने हैं, जो कि पहले 14-15 चैप्टर होते थे। और हमने अपनी बुक्स में आप देखेंगे सीबीएसई बोर्ड पेपर 2022 को सोल्ड करके दिया है, ताकि बच्चे समझ सके। रोहतास जी आप हिस्ट्री की स्लाइड्स लगा दीजिए। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये डिस्टर्ब हुआ हमें काफी, और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, खेद प्रकट करूंगा कि अचानक से हमारे जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर के शर्मा जी, वो किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। शायद वो नेट की उनको प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि नेट अपने हाथ में होता नहीं है, और उस वजह से वो पहले जुड़े हुए थे और अचानक से आउट हो गए, और अभी कोशिश करने के बावजूद भी। लेकिन हमारा कार्य प्रगति पर है। और मैं आपको बताऊं कि हिस्ट्री 11th में आप देख रहे होंगे, एक तरफ न्यू एनसीईआरटी 2023 की कंटेंट है और एक तरफ ओल्ड एनसीईआरटी 23 की कंटेंट है। तो इन दोनों बुक्स में क्या अंतर है, मैं ये आपको पहले तो इस पे बताना चाहूंगा। तो दोनों बुक्स में, अभी आगे चलिए सर, रोहतास जी आगे चलिए। तो दोनों बुक्स में अगर आप 11th की बुक्स में बात करते हैं तो 11th की बुक्स में कोई चेंज नहीं है। 11th की बुक्स में सेम, जो कुछ अंदर से थोड़ी बहुत टॉपिक्स छोटे मोटे जो है अलग किए गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से वैसे अगर हम सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज बुक देखेंगे तो चैप्टर वाइज 7 चैप्टर पहले थे और 7 चैप्टर ही अब है। तो ये दोनों ये पूरी तरीके से है। अब हम आगे चलते हैं 12th हिस्ट्री का। आप 12th हिस्ट्री में देखेंगे जो पहला थीम्स है, इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, इसमें पहले भी 4 चैप्टर थे और अभी भी 4 चैप्टर है, तो ये कॉमन है। और इसी तरीके से आपकी थीम्स जो सेकंड है, उसके अंदर भी इसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन पहले सेकंड थीम्स के अंदर नोवा चैप्टर था, किंग्स एंड आपका क्रॉनिकल्स, इसमें से ये वाला चैप्टर जो है अब डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और ये केवल सीबीएसई ने अपनी तरफ से नहीं को बंद किया या हटाया, ये एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में से ही निकाल दिया है। तो इसलिए आप नई एनसीईआरटी की बुक्स जो रिवाइज्ड होकर के आई है, कृपया उसी को अपने पास रखिए, उसी को अपने बच्चों को दीजिए, उसी को बच्चों को खरीदने के लिए कहिए। और इसी तरह से आप जब 3rd हिस्ट्री के थर्ड थीम्स में जाते हैं तो उसमें भी 2 चैप्टर आपके पहले से हटा दिए गए हैं। सर थोड़ा सा नीचे करिए। यदि हम बात करें तो पहले हिस्ट्री 12th में 12 चैप्टर थे, जो कि अब केवल इस तरीके से पहले 15 चैप्टर थे, जो कि अब 12 रह गए। तो जो चैप्टर पहले 9 होता था, 12 होता था और 14 होता था, ये दोनों चैप्टर हटा दिए गए हैं, तीनों चैप्टर हटा दिए गए हैं। अब 15 के बजाय चैप्टर 12 है। तो 3 चैप्टर अब बच्चों को नहीं पढ़ने होंगे, इनके सीरियल नंबर भी बदल चुके हैं,
और ये बुक्स पूरी तरह से रिवाइज होकर के मार्केट में एनसीईआरटी ने नई दे दी है। आगे चलिए प्लीज, लिस्ट ऑफ रीजनलाइज खोलिए सर। और जो कि अभी मैंने आपको बताया ही है, ये आपके 11th रेशनलाइज ऑफ कंटेंट टेक्स्ट बुक, ये आपके थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आपके जो है कुछ चैप्टर्स जो थे ये रेशनलाइज कंटेंट मैंने आपको दिखाया है। ये चैप्टर्स जो है इस बार इसमें से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। सर नेक्स्ट इसको बंद करके दूसरी स्लाइड्स चलाइए। रेशनलाइज 12th ले लीजिए। ये रेशनलाइज 12th है, जिसमें कि अभी अभी मैंने बताया कि पहली थीम्स में कोई चेंज नहीं है। सेकंड थीम्स में आपका एक चैप्टर जो 9 चैप्टर था किंग्स एंड द क्रॉनिकल, ये वाले को अब हटा दिया गया है। ये पूरा चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, एनसीईआरटी की बुक्स में भी नहीं है। और जो 12वां चैप्टर था वो भी आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। और इसी तरह से 14वां चैप्टर, यानी 12th की हिस्ट्री में से अब 3 चैप्टर बुक्स में से हटा दिए गए। ये रेशनलाइज सीबीएसई की तरफ से और एनसीईआरटी की तरफ से दिया गया है, जो कि वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस बार जो है, चलिए सर आगे चलिए, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर, हाँ सर इसको खोलिए। पर सीबीएसई ने जैसे ही अपना पाठ्यक्रम इस बार दिया था, तो साथ ही साथ अपना सैंपल पेपर्स उन्होंने दे दिया था, जिससे कि बच्चों को आने वाले समय में किसी तरह की कोई दिक्कत ना झेलनी पड़े। तो सीबीएसई कुछ जब इस तरह के चेंजेस करती है, कुछ बदलाव अलग से करती है, तो वो साथ ही साथ सैंपल पेपर इशू कर देती है, ताकि आने वाले समय में बच्चों को ये पता चल जाए, टीचर्स को ये पता चल जाए कि उन्हें अपने छात्रों की किस प्रकार से उनको तैयारी करानी है, किस प्रकार से उनको लेके चलना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने अपना पूरा ये पेपर्स बच्चों के सामने एक सैंपल पेपर के रूप में रखा, जो कि हमने अपनी बुक्स में दिया हुआ है, सॉल्यूशन करके इसका दिया हुआ है। आप देखेंगे कि इस तरीके से, आप थोड़ा सा नीचे करिए सर, आप सेक्शन ए देखेंगे तो सेक्शन ए में आप देखेंगे कि इस तरह से सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई में आपके 34 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए के अंदर 1 से 21 तक एमसीक्यू होंगे, जो कि 1 मार्क्स के होंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो एमसीक्यूज होंगे ये पहले की तरह से अब सिंपल नहीं होंगे। इन एमसीक्यूज में अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे असर्शन, रीजनिंग होंगे। स्टेटमेंट, एक असर्शन दिया जाएगा, एक रीजन्स दिया जाएगा, और उसमें पूछा जाएगा इसमें असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सत्य है, या असर्शन सत्य है, रीजन गलत है, या असर्शन और रीजन दोनों गलत है। इस तरीके से करके बच्चों को जो है इस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज में 2 टेबल्स दे दी जाती है, एक टेबल ए, कॉलम बी, उनमें दोनों में कोई भी संबंधित सामग्री दी जाएगी, उनको मिलान करना होगा, और फिर उनके नीचे कोड दिए रहते हैं। उन कोड के अनुसार बच्चों को अपने ऑप्शन चुनने होंगे, ताकि वो अपने ऑप्शन चुन करके उसको करेक्ट कर सके। इस तरह से एमसीक्यूज थोड़े अब की बार टिपिकल कर दिए गए हैं, पेपर पैटर्न बदल दिया गया है। सेक्शन बी में आप देखेंगे तो ये 22 से 27 तक आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके लिए 60 से 80 वर्ड में बच्चों को करने होंगे। नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, तो नेक्स्ट सेक्शन होगा सेक्शन सी। ये 28 से 30 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, और इसमें बच्चों को 300 से 350 शब्दों में अपना एग्जाम लिखना होगा। सेक्शन डी की बात करें तो क्वेश्चन 31 से 33 होगा। ये एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ये एक कोई पैराग्राफ्स या कोई सोर्स या इस तरह के एक पैराग्राफ संबंधी दिया जाएगा, उसमें से आपके डिस्क्रिप्टिव या फिर एमसीक्यूज टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे, जो कि 4 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। ये 4 मार्क्स के एमसीक्यूज हो सकते हैं या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ सेक्शन ई, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 एक मैप संबंधी होगा, और जिसमें कि 5 प्रश्न इसमें से हिस्ट्री से संबंधित दिए जाएंगे। और इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर बच्चों को कंप्लीट करना होगा। तो इस बार पेपर पैटर्न को चेंज किया गया है, और इसीलिए मैंने ये बताया कि आपके जो एमसीक्यूज और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, वो इस बार नए जोड़े गए हैं,
तो आप उन पर बच्चों को एक तैयारी करने के लिए अच्छे से सामग्री उनको समर्पित करेंगे, उनको देंगे। और वो हमने सभी सामग्री जो है अपनी गोल्डन बुक्स में बड़े अच्छे से दी है। मैं उसमें आगे दिखाऊंगा आपको कि हमने किस तरीके से 10 ईयर्स के पेपर्स और सभी सामग्री कितने अच्छे से हमने गोल्डन बुक्स में दी है। सर आगे चलिए। तो ये एक सिंपल तरह के आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि एमसीक्यूज होंगे। और आगे चलिए। तो ये सिंपल एमसीक्यू जैसे पहले आते थे इस तरह के एमसीक्यूज कुछ होंगे। ये पिक्चर बेस्ड आपका चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये आपको ऑप्शन दिया जाएगा पिक्चर्स का और उसमें से आपको ये 4 एमसीक्यू दिए जाएंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये इस तरीके से आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सर आगे चलिए। जो एक अलग तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो ये बस यही रोकिए सर। ये आपका एक अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे और ये 4 स्टेटमेंट में से आपसे पूछा जाएगा कि ओनली 1 इज करेक्ट है, ओनली 1 एंड सेकंड इज करेक्ट है, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट है, ओनली थर्ड एंड फोर्थ इज करेक्ट है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के लिए नहीं आया करते थे। इस बार से इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाइए। इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपको दिखाया गया है कि देयर इज 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज अ असर्शन ए एंड द रीजन आर। मार्क योर आंसर एज पर द कोट्स गिवन बिलो। नीचे आपको एक असर्शन दिया गया है और उस असर्शन के साथ साथ उसका एक रीजन दिया गया है। पहले बच्चों को असर्शन पढ़ना पड़ेगा और फिर रीजन, और कंफर्म करना पड़ेगा कि जो असर्शन है वो रीजन से मेल खाता है, असर्शन सत्य है या असर्शन असत्य है, रीजन उससे जुड़ा हुआ है या रीजन उससे अलग है। और फिर इसमें से आपको 4 ऑप्शन बच्चों को दिए जाएंगे जो कि बच्चे को क्लियर करना पड़ेगा कि बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड असर्शन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि बोथ दोनों के दोनों ट्रू है और जो रीजन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इससे संबंधित इस तरह के आपके बोथ बी में दिया गया है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों के दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। और सी में होगा ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन जो है आपका सत्य है और रीजन फॉल्स है। इस तरीके से 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। हमारा मोटिव यही था कि बच्चों को, टीचर्स को और ये सब एक क्लियरिटी हो कि किस तरीके से आने वाले समय में एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, ताकि अध्यापक अपने बच्चों की उसी तरीके से तैयारी करे और वो एक अच्छे से अच्छे अंक बच्चे जो है ला सके। तो जैसे मैंने ऊपर बताया, एक ऑप्शन इस तरीके से पूछ लिया जाएगा, असर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और सर आगे चलिए। क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हो, आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर्स रिलेटेड द जो हड़प्पा और सिविलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर लोकेटेड नियर कोस्ट आपको एक ये ऑप्शन ये दिया गया है, एक स्टेटमेंट, और इसके बारे में दूसरा स्टेटमेंट से दिया गया है। पूछा गया है कि इसमें फिर ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है एग्जाम में इस बार आएंगे। और नेक्स्ट चलिए सर। और ये नॉर्मल तरह के क्वेश्चंस आपके जो आते ही है, बस 13वें क्वेश्चन पे रोकिए। और मैं बता रहा था कि तीसरी तरह के क्वेश्चंस आपके इस तरह के होंगे, जिसमें कि आपको 2 कॉलम दे दिए जाएंगे। दोनों कॉलम का बच्चों को पहले मिलान करना होगा कि ए का 3 से मिलता है या ए 2 से मिलता है या ए 4 से मिलता है, और बी किससे मिलता है, फिर सी किससे मिलता है और डी किससे मिलता है। पहले सीधे सीधे इस तरह के जो मिलान संबंधी क्वेश्चन आते थे, ये 6, 7, 8 में आपने देखा होगा कि बच्चों के लिए आप बनाते थे, अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस बनाते थे और बच्चा एक मिलान कर देता था कि ए का पहला मिलेगा या तीसरा मिलेगा या फोर्थ मिलेगा, जो भी मिलेगा उस तरीके से बच्चा। लेकिन अब मिलान करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलिए सर, थोड़ा ऑप्शन दिखाइए इसके। ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। ये ऑप्शन दिए जाएंगे कि क्या 2, 1, 4, 3 ठीक है या 3, 1, 2, 4 ठीक है। इस तरीके से आपका बच्चे को
पहले पूरे आपके दोनों कॉलम्स को मैच करना होगा और मैच करने के बाद बच्चे को ये बताना होगा कि इनमें से ये ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन को बच्चा टिक करेगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस बनेंगे नेक्स्ट सर। और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनमें से चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पहले हम क्या होता था डायरेक्ट इस तरीके से दे देते थे कि भाई फिल इन द ब्लैंक्स को करिए, लेकिन अब क्या है इस तरीके से भी दिया जाएगा कि एक फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और इसमें करेक्ट आपको ऑप्शन बच्चों को चुनना होगा। तो इस तरीके के भी बच्चों को क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये नेक्स्ट भी उसी तरीके का है। तो मैं यही आप लोगों से ये अवेयर कर रहा था। वैसे आप खुद एक जागरूक है और सर और नीचे करिए 20 पर दिखाइए। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस तरीके के पर्सन आप देखेंगे, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पर एक 4 स्टेटमेंट ABCD दिए गए हैं और किसी एक व्यक्ति इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर दिया गया है और पूछा गया है कि ये किसके बारे में ये चारों ऑप्शंस जो है बता रहे हैं। इब्न बतूता के बारे में बता रहे हैं या आलन ब्रूनी के बारे में बता रहे हैं, किसके बारे में। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि ये चारों ऑप्शन किस व्यक्ति के बारे में, किस पर्सन के बारे में, किस के बारे में ये इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ ये इंडिकेट कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी इस बार जो है रखे जा सकते हैं। तो CBSE ने अपने एग्जाम पैटर्न को बदल करके इसीलिए ये एक सैंपल पेपर हमें दिया है ताकि हम ये अपने बच्चों को इसी तरीके से तैयारी कर सके, इसी तरीके से बता सके। सर आगे चलिए। और ये 21 क्वेश्चन आपके एक तरह से खत्म हो जाते हैं, जो कि पहला सेक्शन था आपका। और पहले सेक्शन में आपके सारे क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे, लेकिन ये MCQ एक सिंपल बेस पर नहीं होंगे। और फिर उसके बाद में आपके जो राइटिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो सब स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें तो आप जानते ही है कि, और बच्चे भी जानते ही है कि किस तरीके से बच्चे को 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने वर्डों में आपने सब समझाया हुआ है। ये मैं आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बता रहा था कि इस तरीके से एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है इस बार से दिया जाएगा। और एक पैराग्राफ बुक्स में से बच्चों को उठा करके एक फैक्चुअल, कोई फैक्ट, कोई ग्राफ दे सके, कोई सत्य घटना पर आधारित कोई फैक्ट दे सकते हैं, कोई हिस्ट्री का फैक्ट दे सकते हैं। इस तरीके से उठा करके एक फैक्ट दिया जाएगा और उस फैक्ट से संबंधित उस पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन MCQs भी हो सकते हैं, क्योंकि कई जगह मैंने देखा है कि CBSE ने MCQs दे दिए, कई जगह डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से लिखने वाले क्वेश्चंस दिए हैं। और ये एक नए तरह के अपना पैटर्न CBSE ने जोड़ा है। तो ये भी मैं आप लोगों को, ये भी एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके से CBSE ने 2 नंबर का एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 31 नंबर पर दिया और एक 32 नंबर पर दिया। और इस तरीके से CBSE ने अपना ये दिया है। सर नेक्स्ट चलेंगे आगे। चलिए सर नेक्स्ट चलिए। ये 33 भी उसी तरह का क्वेश्चन है और इनमें से बच्चों को कोई जो है इस तरह से करने होंगे। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे और मैप बेस्ड क्वेश्चन तो मोस्टली आप कराते ही हो बच्चों को। मैप को बच्चों को थोड़ा, अगर उनको एक फुल मैप करके उनके सामने रख करके उनको, कई बच्चे मैप को रटते हैं, लेकिन रटने से मैं समझता हूँ कि मैप बच्चों को आता नहीं है। तो आप जब उनको अच्छे से मैप सामने रख के हर चीज उनको दिखाएंगे, समझाएंगे, पूरे मैप का वर्णन करेंगे कि कहाँ से हमारी कौन सी रिवर्स निकलती है, सिंधु निकलती है तो कहाँ से निकलती है, सतलुज होती है तो कहाँ से निकलती है, कौन से रिवर्स कहाँ से निकल करके कौन कहाँ पर जो हमारे दर्रे हैं, जो पहाड़ियां हैं, जो हिल्स है। बच्चों को आप मैप के जरिए पूरे हिस्ट्री को जोड़ेंगे और उनको समझाएंगे तो मैप्स बच्चे आराम से भरेंगे। और हिस्ट्री में कौन सा युद्ध किस क्षेत्र में हुआ, और बच्चे को अगर यही नहीं पता होगा कौन से राज्य में क्या क्षेत्र पड़ता है क्या, तो बच्चे उसको आसानी से नहीं कर पाते। तो ये आप करते ही है, इसमें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोई बात नहीं है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि असर्शन रीजंस और बेस्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस और जो मैच द कॉलम्स के किस तरीके से इस बार पैटर्न बदल करके नए क्वेश्चंस जो है रखने जा रही है CBSE, उसको आप ध्यान में रखेंगे।
सर चलिए इसको बंद करके आप क्वेश्चन पेपर का डिजाइन आप खोल दीजिए एक बार। ये क्वेश्चन पेपर्स का डिजाइन है, और हालांकि मैं इसके बारे में पहले से ही थोड़ा बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार आप देख लेंगे। सर थोड़ा ऊपर करिए, पूरा आने दीजिए स्क्रीन पर, बस बस बस। ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन है, जिसमें कि आपको इसमें से दिया गया है कि थीम 1 में से 3 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट आंसर टाइप पूछा जाएगा और लॉन्ग आंसर टाइप कोई नहीं पूछा जाएगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है, और इस तरीके से टोटल ये हमारा 10 मार्क्स के ये थीम 1 जो होगी ये हमारी रहेगी। थीम 2 और 3 में से भी हमारे 4 एमसीक्यू होंगे, उसमें से शॉर्ट आंसर टाइप कोई क्वेश्चन नहीं रखा जाएगा। ये मैं 11th के पेपर डिजाइन की बात कर रहा हूँ। हालांकि इसमें थोड़ा स्कूल अपने अपग्रेड ऊपर नीचे अपने हिसाब से भी कर सकता है। ये आपका 11th का पूरा जो सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिया है, ये मैं आपके सामने है, आप बेहतर समझते हैं। सर इसमें से इसको बंद करिए और 12th का भी एक बार क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिखा दीजिए। तो ये आपका सिलेबस है जो कि 23-24 में दिया गया है, और इसमें से जो है आप तैयारी कराएंगे इसको ध्यान में रखते हुए। ये 12th हिस्ट्री का सिलेबस है। सर एक बार इसको दिखा दीजिए हमारे जो अध्यापक गण हैं उन सभी को। ये आपके पीरियड्स और कितने मार्क्स में, ये हमारी जो पहली 4 थीम है ये 25 मार्क्स में रखी गई है, और दूसरी 4 थीम भी 25 मार्क्स में रखी गई है। नेक्स्ट चलिए तो थोड़ा ऊपर करिए, और ये इस तरीके से करके हमारी जो तीनों थीम्स है 25 और 25 में रखी गई है। 5 नंबर जो हमारे मैप के है वो इंक्लूडिंग किए गए हैं। इस तरीके से 80 मार्क्स का हमारा ये पूरा पेपर बन जाता है, और 20 नंबर इसमें जो आपके प्रोजेक्ट वर्क होता है, जो आप बच्चों से इंटरनल असेसमेंट टाइप लेते हैं, 20 नंबर उसके बन जाते हैं। और इस तरीके से करके ये हमारा पूरा जो पेपर है वो हमारा 100 मार्क्स का हो जाता है। सर ज्योग्राफी भी आप खोल दीजिए, हिस्ट्री को बंद करके। डॉक्टर यशवंत चौहान जी हमारे साथ जुड़े थे, अगर वो मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या डॉक्टर साहब आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ में? अनम्यूट करिए अपने आप को। डॉक्टर यशवंत चौहान जी, डॉक्टर यशवंत चौहान जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सर को भी कोई वॉइस इशू है। आपकी 11th ज्योग्राफी में भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि 11th ज्योग्राफी में भी एनसीईआरटी ने अपनी नई बुक्स रिवाइज करके निकाली है। तो उसी तरह से जैसे हिस्ट्री की नई बुक्स निकाली है, उसी तरीके से ज्योग्राफी की भी नई बुक्स निकाली है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों से कहिएगा कि वो नई बुक्स ज्योग्राफी की खरीद करके लाए, क्योंकि ज्योग्राफी में हर चैप्टर में से कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स भी कुछ हटा दिए गए हैं, और कुछ मेन टॉपिक्स के रूप में भी हटाए गए हैं। जैसे कि आप इसमें से चैप्टर 5 आप ओल्ड एनसीईआरटी की बुक्स में से आप देखेंगे तो चैप्टर 5 मिनरल्स एंड रॉक्स जो एक चैप्टर होता था उसको अब डिलीट कर दिया गया। और सर थोड़ा आगे चलिए, इस तरीके से ये चैप्टर हटा दिया गया। और आप ओल्ड में ही देखेंगे 15वां चैप्टर भी लाइफ ऑन द अर्थ भी अब हटा दिया गया। और पहले ज्योग्राफी 11th में 16 चैप्टर होते थे, जो कि अब 14 चैप्टर इसमें, यानी 2 चैप्टर अब एनसीईआरटी ने हटा दिए। और इस तरह से बुक्स के सीरियल नंबर भी हमारे बदल गए हैं, और बुक्स के पेजेस नंबर, सीरियल नंबर सब बदल गए हैं। ये हमारा, और 12th ज्योग्राफी में जो भी मैंने इधर ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ रेड से मार्क्स किया है, ये एनसीईआरटी ने इनको हटा दिया गया है। जैसे कि आप 6ठा चैप्टर देख रहे होंगे, तो इसमें से जो हमारा सोयल जो हमारा चैप्टर था इसको एनसीईआरटी ने हटा दिया है। और नेक्स्ट चलेंगे सर हम, तो ज्योग्राफी जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन में से भी चैप्टर 6 और 8, चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन ऑफ द एरियल फोटोग्राफ्स वाले को भी हटा दिया गया है, और वेदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैप्स वाले चैप्टर को भी अब एनसीईआरटी ने ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल से हटा दिया है। अब ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में 12th में केवल 6 चैप्टर पूछे जाएंगे, और पहले 8 होते थे। तो ये आपने अभी एनसीईआरटी, अच्छा वो 11th का ही था, सॉरी वो 11th के प्रैक्टिकल का था। ये 12th में आप देख रहे हैं, ये 12th में फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आप देखेंगे चैप्टर 3 पॉपुलेशन
कंपोजिशन जो चैप्टर था हमारी पहले फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, उसको एनसीईआरटी ने हटा दिया है और ह्यूमन सेटलमेंट्स को भी ज्योग्राफी ने हटा दिया है। इस तरीके से जो हमारी बुक्स है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th की, उसमें से केवल अब 8 चैप्टर छोड़े हैं और जो दूसरे चैप्टर्स भी बच जाते हैं इनमें से भी कुछ कुछ बीच बीच में से कई पैराग्राफ्स हटा दिए गए हैं, कुछ बुक्स रिवाइज कर दी है। तो मैं कहूंगा कि एक पूरी नई एनसीईआरटी आप खरीद ले, उसमें से आप देखेंगे कि पुरानी एनसीईआरटी से काफी चेंज उसके अंदर किया गया है। तो हमारी दूसरी बुक्स है इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें भी आप देखेंगे कि चैप्टर 2, 3 और 8 इस तरीके से करके एनसीईआरटी ने 3 चैप्टर बुक से डिलीट कर दिए हैं। जो रिवाइज एडिशन उन्होंने 2023 के लिए दिया है उसमें ये 3 चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेंगे और ये नई बुक्स हमारी केवल 9 चैप्टर्स से रिलेटेड होगी। और ये जो 9 चैप्टर्स है इनमें से भी मैं फिर से बता देता हूँ, बीच बीच में से कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें जो एनसीईआरटी ने उसमें रिवीजन किया है, क्योंकि डेटेज पुराने हो जाते हैं, डेटा पुराना हो जाता है तो उसको नया करके एनसीईआरटी ने लगाया है। तो आप नई बुक्स को आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट आप चलिए, तो ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है। प्रैक्टिकल पोर्शन में भी पहले 6 चैप्टर होते थे, 2 चैप्टर अब उसमें से हटा दिए गए हैं और अब केवल 4 चैप्टर जो है एनसीईआरटी ने रखे हैं प्रैक्टिकल के पोर्शन में ज्योग्राफी में। ये आपका मैंने ओल्ड और न्यू कंपैरिजन कराया, जो कि हमारी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स होती थी और नई एनसीईआरटी बुक्स में क्या डिफरेंट आया, क्या अभी एनसीईआरटी ने रिवाइज करके जो बुक्स निकाली है उसमें क्या किया है, ये मैंने आप सभी के सामने बात रखी है। नेक्स्ट चलेंगे सर, इसको हटा दीजिए और इसका जो रेशनलाइज सिलेबस है वो दिखा दीजिए। 11th का रेशनलाइज सिलेबस इस तरीके से है। ये एनसीईआरटी ने दिया है कि उन्होंने क्या क्या रेशनलाइज किया है, किस में से छोटे मोटे टॉपिक्स हटाए हैं और कौन फुल चैप्टर हटाए हैं, ये पूरा आपके सामने है। थोड़ा सा सर इसको ऊपर कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा था कि चैप्टर 1 ज्योग्राफी एज द डिसिप्लिन, इसमें से भी कुछ अंदर से भी एनसीईआरटी ने कुछ चीजें हटाई है। चैप्टर इसमें से 5 और 7 नंबर के जो पेजेस थे उनको हटा दिया गया है। और इसी तरीके से चैप्टर 2 आप देखेंगे द ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ को देखेंगे तो आवर सोलर सिस्टम्स को, द मून को जो, और ये जियोलॉजिकल थीम्स वगैरह कुछ स्केल्स 16 से 18 नंबर पेज एनसीईआरटी ने अपनी पुरानी बुक से डिलीट कर दिए हैं। तो इस तरीके से कुछ पूरे चैप्टर हटाए हैं और कुछ चैप्टरों से छोटे छोटे टॉपिक्स बीच में से हटा दिए हैं। तो ये जानकारी आपको पूरी तरीके से होनी चाहिए ताकि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो और यदि उनके पास पुरानी बुक्स है तो वे बच्चे उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। इस तरीके से आप 3rd यूनिट क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सोइल का जो चैप्टर 4 है उसमें से देखेंगे तो ये काफी सारे आप 34 से 38, 40 से 44, 46 से 47, 49 से 50 और 53 से 54 जो पेजेस थे ओल्ड बुक्स में वो सब हटा दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो अब जो नई एनसीईआरटी की बुक्स आई है उसमें ये सब नहीं है। ये चैप्टर 5 में भी आप देखेंगे इसी तरीके से, चैप्टर 6 में भी देखेंगे। चैप्टर 6 तो सोयल से, ये तो आपका कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया। तो प्रिय साथियों, मैं आपको यही एक इंफॉर्मेशन बता रहा था कि एनसीईआरटी ने अपनी पूरी बुक्स को रिवाइज कर दिया है। तो पूरी बुक्स रिवाइज होने के बाद इस बुक्स में से काफी सारे चेंजेस हो गए हैं, काफी सारा डाटा नया हो गया है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी बुक्स में सारी नई चीजों को रखा है। तो यदि आप सर इसको हटा दीजिए और अब आप 12th का रेशनलाइज दिखा दीजिए। 12th के रेशनलाइज में भी आप देखेंगे तो इसी तरीके से आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप में से भी 4 और 5 पेज जो है हटा दिए गए हैं। और चैप्टर 2 में से आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ वाले चैप्टर में से भी आपके पेज नंबर 9 और 11 to 14 तक इस तरीके से पेजेस बीच बीच में से जो टेबल्स है 2.1, 2.2, 2.3 कुछ एक्टिविटीज है ये सब हटा दी गई है। तो आपको बुक्स जो है पूरी नई कर दी गई है और डाटा नया डाल दिया गया है। आप इसमें देखेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन में भी 17 से 21 जो चैप्टर था ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट चलिए। हाँ सर, कुछ अध्यापक पूछ रहे हैं कि स्पेसिमेन कॉपी मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी सर, वो मैं अभी उसकी घोषणा करूंगा। आपको सर्टिफिकेट्स और स्पेसिमेन की भी घोषणा करूंगा, वो कंप्लीट रूप से आपको मिलेगी, उसकी चिंता आप ना करें।
पहले जो मैं थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वैसे तो आप खुद समझदार है, जागरूक है। टीचर्स वर्ग तो सबसे ज्यादा जागरूक होता है और वो उन्हीं के भरोसे तो हो आज का युवा वर्ग, आज की युवा पीढ़ी, और वो सब एक पूर्ण विश्वास बच्चों को जब घर से जो भेजते हैं तो टीचर्स के भरोसे ही तो भेजते हैं पूरा विश्वास करके। तो लेकिन फिर भी कई बार कुछ जानकारी हमसे छूट जाती है, तो वही एक छोटा सा प्रयास हमारा है कि वो सारी संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच जाए। तो ये रेशनलाइज सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, चैप्टर 7 में से, चैप्टर 8 10 में से। चैप्टर 10 तो फुल हटा दिया गया है, अपेंडिक्स 1 हटा दी गई है। इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स बीच बीच में से, और कुछ टॉपिक्स पूरी तरीके से एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में से हटा करके एक रिवाइज्ड बुक्स मार्केट में दी है। तो कृपया करके आप उसी बुक्स को प्राप्त करें। और जो हमारी गोल्डन्स है वो इसी नई बुक्स के आधार पर ही हमने बनाई है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हमने नहीं दी है, ताकि बच्चे को अपनी एनर्जी किसी गलत जो आनी ही नहीं उनके एग्जाम में, उनमें वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना करे। तो सर इसको हटाइए, और ये इसका भी सैंपल पेपर्स आप दिखाइए प्लीज। ये सीबीएसई ने सैंपल पेपर, जिस तरह से हिस्ट्री का मैंने बताया, ज्योग्राफी में भी उसी तरीके से सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर दिया है। और ये सैंपल पेपर हमने सोल्व करके अपनी बुक्स में भी लगा दिया है। और इस तरीके से सब दिखाइए। ऊपर चलिए, थोड़ा सा ऊपर चलिए, ताकि इसकी पूरी जर्नल इंस्ट्रक्शंस में पढ़ सकूं। और यही मैं इसमें भी आपको बता रहा हूं कि इसमें भी आपके जो है ई तक सेक्शन होंगे, और पहले सेक्शन में 1 से 17 तक मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से होंगे जैसे कि कुछ कुछ मैंने हिस्ट्री में बताए थे। और फिर आपके सेक्शन बी में 19वां, 18वां और 19वां वही सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और इसमें एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन सी में 20 से 23 तक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि 3 मार्क्स के होंगे, और 80 to 100 उसमें बच्चों को वर्ड्स में लिखने होंगे। और इस तरीके से सेक्शन डी 24 से 28 तक होगा, जो कि लॉन्ग आंसर। हेलो हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Sir, I am Dr. Yaswant here. May I continue if you allow? या सर, या सर, या ये मैंने सर ये खोला हुआ है, आप इसको प्लीज समझाइए। आप वीडियो में आ जाइए अगर हो सकते हैं तो सर प्लीज। Sir, ओके सर, यस सर, यस प्लीज। ये सर ज्योग्राफी का आप थोड़ा सा कंटिन्यू करिए और बताइए। डॉक्टर यशवंत चौहान जी है, और सर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, और सर थोड़े से बिजी थे, देर से जुड़ पाए। और सर जो है वो जयपुर रुक्मणी बिरला मॉडर्न हाई स्कूल में एज ए पीजीटी है। और सर जो है एक बंसल क्लासेस भी सर की चलती है, एनटीएससी में एक्सपर्ट वर्क सर करते हैं। सर प्लीज कंटिन्यू। thank you sir, thank you so much. Hello, good evening everyone. Sir, thank you so much. आपने absentee के अंदर you have taken so nicely. I was hearing on the while I was driving. Sir, you have already mentioned that first of all we will get in 17 MCQs, right? MCQs में we will get every type of MCQs, like whether we are having assertion reasoning plus one correct options is there or two correct arranged in the chronological order, that will also is there. That becomes to the section B, where we are having from 18 to 19 are source based questions carrying 3 marks. सर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, सोर्स बेस केवल एक अपने को इंफॉर्मेटिक सोर्स बेस मिलता है, राइट? अपन बच्चों को थोड़ा सा गाइड यहाँ करें कि वह जो इंफॉर्मेशन दी हुई है कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो की वो नहीं होगी, राइट? कई बार अपने पास होता है लाइक दे आस्क गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के अंदर सॉइल क्यों डिपॉजिट हो जाता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट, तो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है। अब सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है दैट दे आर वर्किंग ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल, राइट, एंड क्रिएटिव। अब बच्चे के अंदर वो सारी चीजें देखना चाहते हैं। अब जो पुराना एक पैटर्न अपना चल रहा था जिसपे अपन डायरेक्ट क्वेश्चन आता था और उसका आंसर बच्चा लिख देता था, अब सीबीएसई ऐसा नहीं चाहता। सीबीएसई चाहता है कि अपन बच्चे का खुद का एक एनालिटिकल होना चाहिए, वो क्रिएटिव होना चाहिए, वो थिंकर होना चाहिए, राइट सर? तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में अपने को ध्यान ये रखना है कि इंफॉर्मेशन वो जरूरी नहीं है वहां होगी, केवल उतनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। ही कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इटसेल्फ आल्सो,
Then we comes to the section C, where we are having the questions from 20 to 23 are the short answer questions type, which carries 3 marks. Right here, 80 to 100 words. Sometimes the student also asks, कई बार हमसे पूछते हैं क्या सर हम 100 वर्ड से भी ऊपर जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं सर, कोई लिमिटेशंस नहीं है. बच्चे को केवल अपने को इतना गाइड करना है कि जो आप लिख रहे हैं वो सही लिखें, आप गलत इंफॉर्मेशन नहीं लिखें. दैट इज द मेन थिंग. सेक्शन डी में आते हैं सर 24 to 28, वेयर वी आर हैविंग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस व्हिच कैरी 5 मार्क्स. अपने लेटेस्ट पैटर्न में सीबीएसई कहता है कि हमें जितने भी आंसर्स, वी विल गाइड द स्टूडेंट्स दैट वी शुड राइट इन द पॉइंट्स. दैट इज द मेन थिंग. अपना केवल अपना कंटेंट हाईलाइट करके पॉइंट्स में आंसर लिखे, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखे. अपने को यहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से ड्रिल करके समझा करके उसको भेजना है कि वो नहीं लिख रहा. क्योंकि जितने भी सीबीएसई की आती है अपने पास, राइट, या गोल्डन पब्लिकेशंस में अपन आंसर देखते हैं, दे हैव रिटन इन द पॉइंट्स एवरीवेयर. तो अपने को ध्यान रखना है कि बच्चा केवल पॉइंट्स में ही आंसर लिखे. Then we comes to the section E, question number 29 to 30 on the map based questions. मैप की लिस्ट अपने पास दी हुई है. इसमें अपना डिफिकल्ट पार्ट आता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है सर, जिसमें हमारे पास वर्ड मैप है, जहां बच्चे को आइडेंटिफिकेशन करना है. तो अपने को उसमें ध्यान ये रखना है कि बच्चे को मैक्सिमम पार्ट्स में उसको ट्रेंड करें अपन. राइट, ट्रेनिंग के अंदर अपन ध्यान रखें कि बहुत कुछ प्लेसेस बहुत फेमस होते हैं, उन पे बच्चा कम से कम फोकस करे. ठीक है सर. देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सर थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको. जी सर. लाइक द क्वेश्चंस आर गिवन, सैंपल यहाँ दिया हुआ है सर. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग दैट इज ऑफ असेंशन एंड रीजनिंग. उसमें चारों ऑप्शंस अपने पास है. फर्स्ट सही है, दोनों सही है, एक गलत एक सही है, तीनों अपने पास गलत हैं. दिस इज ऑलरेडी डन. वो अपने पास दिया रहता है बच्चे के पास. Like if I come here, high level of human development group has 53 countries. ठीक है सर, डायरेक्ट अपने पास there are 53 countries whose ratio is between 0 to 1. Reason, a higher investment in the people and the good government has set up a group apart from others. Right, इसमें उसने लिखा हुआ है investment in people and good governance has set up this part. तो ये अपना रीजन गलत है, इसका सही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं कर रखा अपने पास. They have invested more in health, education, right, literacy. थर्ड सेकंड पार्ट पे अपन आते हैं सर. कंसिडर लाइक वी आर हैविंग, वी हैव टू मैच दीज. थोड़ा सा ऊपर करें इसको, स्क्रॉल करें हल्का सा. इसमें भी गलत है. देन वी कम्स टू द थर्ड क्वेश्चंस, राइट, वेयर दीज नेम्स आर गिवन. पोर्ट आर क्लासिफाइड एज, किस तरह का पोर्ट अपने पास है. नेवल पोर्ट है अपने पास में, लाइक ऑयल पोर्ट है. So it is a direct question, right? Then we comes to the consider the following of the statement and choose the correct answers with the help of the given options. ये अपने जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके तहत बच्चा अपने पास करेगा. थोड़ा स्क्रॉल करें सर प्लीज ऊपर. तो ये सारा पार्ट अपने पास 17 क्वेश्चंस तक देखते हैं. सर 17 तक दिखाइए. दे ऑल आर लर्नेड वन. सर 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 एक बार रोके इसमें 15 16 से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें सर इसको. जी सर. सर देखिए ये अपने पास पॉपुलेशन का अपने पास बेस द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस 15 to 17. अपने पास ये ग्राफ बना हुआ है सर, जिसमें स्टेज 1 दिया हुआ है, जहां हमारा पॉपुलेशन, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई. सेकेंड वाले पार्ट में हमारे पास वी हैव द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वेयर द डेथ रेट डिक्लाइन एंड द बर्थ रेट इंक्रीज. दिस इज द सेकेंड स्टेज वी आर हैविंग. थर्ड स्टेज में अब अपन एजुकेटेड हो गए, नॉलेज हो गई, लिटरेसी हायर हो गया, तो इट इज नाउ फ्लक्चुएटिंग. अपना डेथ रेट भी कंट्रोल हो गया एंड ऑब्वियसली द बर्थ रेट. तो सर ये एक तरह से अपने को एक ग्राफ के अंदर इंफॉर्मेशन देगा. एंड ही आस्क्ड द 3 क्वेश्चन. थोड़ा सा 15 16 17 एक बार स्क्रॉल करके दिखाएं. हाउ डज द नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन अकर्स एज पर बर्थ रेट माइनस डेथ. अब उसमें कैलकुलेशन बता रहा है कि नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन का क्या होता है, विच इज ऑलरेडी नोन टू एज बर्थ रेट माइनस डेथ रेट. अपन नेचुरल बोलते हैं. ग्रोथ रेट हमारे पास आ जाता है. देन वी कैलकुलेट ऑन द परसेंटेज आल्सो. तो ये पार्ट अपना वहां से आ जाता है सर. सेकेंड 16 क्वेश्चन हमारे पास कहता है व्हाट डज द ट्रांजिशंस फ्रॉम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज टू द लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज इंडिकेट. तो अपने को इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल, शिफ्ट फ्रॉम रूरल इकोनॉमी, लो बर्थ एंड डेथ रेट टू द हायर बर्थ एंड डेथ रेट, माइग्रेशन फ्रॉम द अर्बन टू द रूरल एरियाज. अब इसमें अपने को देखना है फ्लक्चुएशन क्यों आ रहा है पॉपुलेशन के अंदर.
तो अपन देखें एग्रेरियन इकोनॉमी टू द अर्बन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अब कन्वर्ट होते जा रहे हैं। कन्वर्जन में बोथ उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो रही है, ग्रोथ पार्ट पे कम हो रहा है, वर्क मिल रहा है उनके पास, लिटरेसी इंक्रीज हो रही है। दीज आर द मेन फ्रॉम द गिवन ग्राफ व्हाट कंडीशंस कैन यू इन्फर अबाउट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। जो अपने पास लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड हमारा क्या रहेगा, ठीक है सर। वहां अपन देखते हैं कि हायर बर्थ रेट एंड वी हैव द लो डेथ रेट। अगर अपन लीस्ट वाले में बात करें कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, व्हाट इज द सिचुएशंस देयर, कि हायर ग्रोथ रेट है, हायर डेथ रेट है, लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, हायर बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट। वी नो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में वी हैव बोथ द हायर बर्थ रेट एज वेल एज हायर डेथ रेट। सर ऊपर चले अपन, नाउ वी कम्स टू द सेक्शन बी। तो अपना लिमिट अपने पास दिया हुआ है। अनसीन जो पैराग्राफ अपन बात करते हैं, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, जैसे सेटलमेंट से रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन लिया हुआ है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स वी हैव। तो ये वहीं से अपना एक क्वेश्चन। अब इसके बेसिस पे जरूरी नहीं है सर आपको कि इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन से ही आंसर्स मिल जाएंगे। आपको चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन बच्चे को अपने को ड्रिल करनी है, ड्रिल करने के बाद ही वो देगा। सर इसके क्वेश्चन देखें अपन एक बार। सर ये इसने सोर्स दिया है इसने पास, राइट। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली, बच्चा पढ़ेगा ही पढ़ेगा। एक सर इसमें बच्चे को थोड़ा सा अपन हल्का सा गाइड कर सकते हैं, या अपना गाइडिंग पार्ट ये है कि बच्चे को ये बोले कि पहले एक बार तू क्वेश्चंस पढ़ ले। क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चे को एक आइडिया हो जाता है कि वो आंसर क्या चाहता है। वो थोड़ा सा एक बेटर एक्सरसाइज है, जिसको मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, मे बी आई एम नॉट करेक्ट 100% हियर। जैसे मेरे बच्चों को फील आया कि सर मैं उनको पहले क्वेश्चंस पढ़वा देता हूँ कि ये क्वेश्चंस है, तो बच्चे का एक टारगेट होता है यही आंसर चाहिए चाहिए, इसमें है या नहीं। तो आप भी थोड़ा सा यू कैन ऑल्सो डू लाइक दैट ऑल्सो, कि आप उसको ट्रेन करें कि पहले क्वेश्चंस पढ़ ले, फिर पैसेज पढ़ेगा तो बहुत जल्दी आंसर्स कवर करेगा। ठीक है सर। तो पैसेज अपन नहीं पढ़ते हैं, सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लिया बिकॉज वी ऑल आर लर्नेड वन। एक बार क्वेश्चन देखते हैं सर इसके। सर फिर 19th का उसने दिया हुआ है जी सर, ऊपर करे सर, क्वेश्चन नीचे देगा। 19th में अपने पास मैप बना हुआ है टर्मिनल स्टेशन का, आई थिंक, हाँ, द ट्रांस साइबेरियन रेल रोड इन अर्ली 20th सेंचुरी। आई थिंक जितने भी ज्योग्राफी टीचर्स हैं दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। अपने बच्चे को सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चैप्टर लगता है वो ये ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला। सर इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन यही है, आप इसको बच्चों को याद कराएं, इन मैप्स को उनको बोलें कि कहीं जहां भी वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वहां इनको पेस्ट कर लें। पेस्ट करने के बाद एवरी डे नुक आप इस पे देखें और केवल दो स्टेशन याद करें, ऐड करते जाएं। जैसे मॉस्को याद हो गया, मॉस्को इज वेल नोन टू एवरीवन। फिर हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में अपने पास आ जाता है समरिया आ गया, राइट। तो इसमें सर कुछ देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ सुने हुए हैं हमारे पास, कुछ बिल्कुल नए नए पार्ट आते हैं। इसका एंड और फर्स्ट दो उसको बिल्कुल 100% याद होती है। हर मैप के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है और करना है, कराना है बच्चों से कि भैया उसको ये पहला पार्ट अपने पास क्लियर हो। सर थोड़ा सा अपन ऊपर चले इसमें। देन वी कम्स टू द सेक्शन सी, जो अपने पास पार्ट आ गया। नाउ वी कम्स टू द 3 मार्क्स क्वेश्चंस अपने पास आ जाते हैं। आप इसमें देखें जितने भी क्वेश्चंस आप पढ़ोगे वो 3 चीजें इसमें मांग रहा है। इज आस्किंग फॉर द 3 थिंग्स ओनली। हाउ डू द पीपल चूज द गेट अफेक्टेड in the different aspects of the life due to lack of human development। अब वो पूछ रहा है अपने पास कि भाई कौन कौन सी जगह अपने पास बच्चा अफेक्टेड होता है ह्यूमन लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है उसको, राइट। तो अपने को 3 इसमें अपने पास टारगेट करना है। राइट द फीचर्स ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी, राइट। 2005 में अपने पास यूथ पॉलिसी थी, उनको एजुकेट करना था, कंट्रोल करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, राइट। तो दीज 3 वो डायरेक्ट क्वेश्चन है अपने पास, बुक का ही अपना ऑलरेडी गिवन इज दैट। देन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड डिफरेंट, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है अपनी बुक का ह्यूमन ज्योग्राफी का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसमें 3 नंबर का 100% क्वेश्चन आता है। बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है इसके अंदर कि भैया कौन कौन से इन्वेंशन वाला पार्ट उसको लिखना है या क्या लिखना है। तो थोड़ा इस चैप्टर को क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पे अपन बच्चों को ड्रिल करके पढ़ाएं कि भैया तू इस तरह से इसको तैयार कर कि क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी सेट है उसमें, लाइक नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, ठीक है, दोनों तीनों से। एंड देन वी आर आल्सो हैविंग मार्क टेलर व्हाट ही सेड अबाउट दैट। तो ये सारी चीजें अपने को बच्चे को आनी चाहिए सर उसके अंदर। एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे को 1 नहीं 2 बार पढ़ाएं आप, और उसकी डिमांड रहती है। कंटिन्यूसली टेस्ट लेते रहे आप,
और टेस्ट में कोशिश करें कि दोनों पैटर्न पे अपन टेस्ट ले बच्चों के। एक अपना पैटर्न होता है कि भाई ठीक है, एमसीक्यूज दे दिया, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया, 5 नंबर का। अब हर चैप्टर से इसी पैटर्न पे अपना जितना भी वेटेज का पार्ट आता है सेक्शन, जब वो, क्योंकि अपने पास यूनिट वाइज वो वेटेज देता है, इज नॉट गिविंग एन चैप्टर वाइज, राइट। तो अपना कोई श्योरिटी नहीं है कि 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। देयर इज नो श्योरिटी और नो फिक्स ऑफ दैट। Then we comes to the 24 to 28 as long answer type questions. इसमें सर अपने पास जितने भी आप पढ़ोगे questions, they are asking about the 5 things. How has the noise pollution become a serious problem in the recent years in India? Explain. Right, simple सा question है, कोई भी बच्चा इसके लिए लिख सकता है। लेकिन मैं जो बच्चे अपने 100 मार्क्स स्कोर करते हैं या 90 95 के बीच में रहते हैं, उन बच्चों के लिए छोटा सा what we have to guide is, उनको अपन गाइड करें कि बुक के जो एग्जाम्पल्स दिए हुए उन एग्जाम्पल्स को वो कोड करें। उसमें ये नहीं कि अपन ने ठीक है सिंपल सा नॉइज पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, ये हो गया, सारा कोई भी बच्चा लिख सकता है। क्या चाइल्ड इज स्टडीइंग द नॉइज पॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6, आई थिंक एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 3rd या 4th से चालू हो जाता है। तो वो पैटर्न नहीं। अब अपन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 12th क्लास स्टूडेंट, तो ही हैज टू कोड द एग्जांपल्स फ्रॉम द बुक कि भैया कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है, किस सिटी में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती जा रही है। ये थोड़ा सा जो बच्चे अपने गलती करके आज छोड़ जाते हैं, वो एक जनरल सिंपल क्वेश्चन है। इसको बिगर पढ़े हुए कोई बच्चा जाएगा, ही कैन ऑल्सो राइट, एक पढ़ करके जाएगा तो अपने क्वेश्चन के आंसर्स प्रॉपर लिखेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउ टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक्सप्लेन इन 5 एस्पेक्ट्स। अब इसमें देखें सर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 एस्पेक्ट्स यू वांट, तो अपने को हाईलाइट करते हुए चलना है कि भैया 5 ही पॉइंट आपको 1 2 3 4 5 करके। देन वी हैव व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द सी पोर्ट्स फॉर इंडिया। अब एडवांटेज सी पोर्ट्स के बारे में देखना है, राइट। व्हाट वी हैव टू ट्रेन द किड्स हियर इज दैट कि आप नाम लिख करके उनसे रिलेटेड कुछ चीजें प्रॉपर आंसर्स में लिख के आप केवल ऐसे नहीं किसी पोर्ट्स में हम ट्रेड करते हैं, फिशिंग ग्राउंड हमारे पास डेवलप हो जाता है, सॉइल अच्छा मिल जाता है, नॉट दैट इज द करेक्ट आंसर। आप बताएं मुंबई पोर्ट से क्या क्या आइटम एक्सपोर्ट होता है, राइट। देन वी कम्स टू बैंगलोर पोर्ट आ गया, कोची पोर्ट आ गया, राइट। तो उस तरह से बच्चा जब आपका प्रॉपर आंसर लिखेगा तो ही विल गेट फुल मार्क्स स्टार्ट, कहीं कोई कटने की गुंजाइश नहीं होती। व्हाई द सी पोर्ट टर्म्ड एज ए गेटवे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सी पोर्ट्स। तो सी पोर्ट्स को क्यों उसने गेटवे बोला अपने पास में, गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड 95% ऑफ द ट्रेड इज कैरिड आउट विद द सी पोर्ट्स ओनली। तो बच्चे को अपने को यहाँ ध्यान रख करके जो ट्रेनिंग देनी है बच्चों को, वो देना है कि बुक के अंदर से वो प्रॉपरली आंसर्स बहुत अच्छे से, जैसे गोल्डन पब्लिकेशन की बुक अगर आप लोगों ने देखी होगी अच्छे से, तो वहाँ सारी चीजें they have highlighted and they have given with examples कि उसमें 5 पॉइंट है तो 500 के 500 पॉइंट आपके पास लिखे हुए उस बुक के अंदर। आप अगर देखेंगे उसको तो इट इज गिवन। आई एम वेरी थैंकफुल दैट दे हैव गिवन द बुक्स, क्योंकि अपने पास बहुत ज्यादा बुक अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उसमें बच्चे को भी अपने पास काफी तरह से हेल्प हो जाती है। नाउ वी कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 29 to 30 मैप बेस्ड सर मेजर सी पोर्ट्स। अब ये वाला जो पार्ट है आपको, इसमें अपना बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बहुत अच्छे से करे तो ये हमारे बच्चों का बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। अगर आप बच्चा क्योंकि इंटरेस्ट खत्म करता जा रहा है, अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, माय रिक्वेस्ट इज दैट, क्योंकि मैप को देखते ही बच्चा भागता है। बल्कि अगर अपन रियल सेंस में देखें तो इट इज द स्कोरिंग वन। अगर उसको आता है तो कट से सही लिखेगा तो अपना कंप्लीट हो गया। उसको कराने का सिंपल तरीका, आप एक एक मैप को अलग अलग बनवाएं, बच्चों को फाइल में लगवाएं और उनको कहें कि जहां भी आप पढ़ते हैं या तो आप उसको रख लें या जहां भी आप लिखें वहां पेस्ट करें एंड कंटिन्यूअसली दे विल सी। गोल्डन पब्लिकेशंस में छपे हुए हैं ये, आप उसका फोटोकॉपी करा करके आप उसको पेस्ट कर लीजिए, राइट। तो उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट दिया हुआ है, टू द पॉइंट इन द सेंस दे हैव गिवन व्हाट इज गिवन इन द मैप लिस्ट ऑफ सीबीएसई। तो इन्होंने उतने ही मैप दे रखे हैं जो अपने मैप लिस्ट में। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट है अपना कि भाई उसका फोटोकॉपी करा लो, फोटोकॉपी करा के आप जहां पढ़ते हैं वहां पेस्ट करो, कंटिन्यूअसली आप देखें। तो दिन में 2 बार 3 बार आप देखोगे तो आपको पॉइंट्स याद होंगे।
ये मेन इंपॉर्टेंट अपने पास है, राइट। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, एयरपोर्ट वाला पार्ट है, अपने पास में सी पोर्ट्स का है। दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज ऑलरेडी नोन टू अस। इंडिया वाला ये आइडेंटिफिकेशन का मैप अपने पास। द नेक्स्ट वन वी हैव फ्रॉम द इंडिया। इंडिया के मैप ऐसा नहीं है कि वो नए मैप उनके लिए हैं, दे आर वेल अवेयर अबाउट दैट, 10th में भी करके आए हैं काफी हद तक, क्योंकि 12th में अपना कनेक्टेड है रिलेट टू द 10th। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल, ये अपना आइडेंटिफिकेशन है, कहाँ कहाँ किस तरह का एग्रीकल्चर है वर्ल्ड में, ए बी सी डी की। थोड़ा और ऊपर करें सर। नाउ वी सी इनटू द इंडिया। इसमें अपने पास अब नाउ दे आर गिवन द इंटरनल चॉइसेस आल्सो। अब इसमें अपने पास 5 करने एंड दे हैव गिवन द 6th one, 7th one, sorry, G7. 7 is given here and we have to attempt only 5. An important seaports in Andhra Pradesh, we know very well, that is Visakhapatnam. An important coal mine in Tamil Nadu, Neyveli आ जाता अपने पास में, right? Ratnagiri iron ore, and it is given oil refinery Gujarat, Ankleshwar is there. The state with the highest population density, then we come to the Bihar. यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों को रटा हुआ है अभी तक the West Bengal is having the highest density. नहीं, अपने बुक्स में नया रिवाइज पार्ट आ गया, and in that the Bihar is having, when we come total population, the highest density population is Bihar is having. Total population when we come, it is the Uttar Pradesh, the state leading in the productions of the jute, which is well known to us, that is West Bengal. An international airport in Kerala, right, that is Thiruvananthapuram. तो सर ये अपना पैटर्न रहता है पेपर से रिलेटेड अपने पास। नाउ आई थिंक वी ऑल आर लर्नेड वन, अपन सब जानते हैं क्या सिलेबस है। एनसीईआरटी की जो बुक्स नई वाली बुक्स हैं उससे करें। आपको बुक कई बार क्लास में व्हाट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, कुछ बच्चों के पास अपने पास पुरानी बुक्स, कोई बात नहीं, इफ द चाइल्ड वन चाइल्ड इज हैविंग द न्यू बुक, आप उससे उसी के बुक में कटवा दीजिए कि ये पोर्शन हमारा कटा हुआ है, इसको हटा दीजिए, राइट। तो बच्चों को पेन से काट लेगा तो उसके पास में रह जाएगा। नई वाली जो बुक्स हैं टू द पॉइंट बात कर रहा है वो, उसमें सारा पार्ट आपका डिलीट है। तो मेरे हिसाब से मैं सारा एक्सप्लेन करने की बजाय नाउ वी कम्स टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर व्हाट प्रॉब्लम एज ए टीचर्स वी आर फेसिंग, आई थिंक सर वो बेटर रहेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं सर, बस यही चीजें थी। आपका बड़ा धन्यवाद चौहान साहब। मैं थोड़ा सा कुछ अपनी 1-2 स्लाइड्स दिखा देता हूँ कि गोल्डन से कंटेंट किस तरह की है और क्या क्या दिया हुआ है गोल्डन्स में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपने बहुत अच्छे से इंफॉर्मेटिव जानकारी दी, बड़ा अच्छे से समझाया। और ये एक एक्सपर्ट टीचर्स जो होते हैं वो, उनका यही दायित्व होता है कि वो हमारे समाज को, बच्चों को और हमारे जो भी अध्यापक गण हैं उनको समय समय पर गाइड्स करे और उनका साथ बैठ करके डिस्कस करे, तो एक इंफॉर्मेटिव जानकारी हो जाती है और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो सर मैं ये बता रहा था कि देखिए इस तरीके से ये हमारी जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मैं इसमें बात कर रहा था कि हमारी कंटेंट दी गई है। मैं इसमें दिखा देता हूँ कि सारे टॉपिक्स हमने पूरी नई एनसीईआरटी के अनुसार इसको किया है। कुछ भी आपको इसके बाद में, अगर बच्चे के पास एनसीईआरटी नहीं भी है, आपके पास भी एनसीईआरटी नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही हमने इसमें सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 को भी सॉल्यूशन करके दिया है और सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसको दिया है। सीबीएसई का जो बोर्ड पेपर है 2023 में जो आया है उसका भी सॉल्यूशन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि बच्चा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या आर्ट्स से संबंधित बच्चे होते हैं, मोस्टली उसके बाद ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो उनको आजकल एक CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है। तो उसको भी हमने अपनी बुक्स में दिया है ताकि बच्चों को पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। और इस तरीके से हमने CUET एग्जाम 2022 और 23 को सोल्व करके दिया है। ये हमारा ज्योग्राफी था। और ये पेपर, मैं एक सैंपल चैप्टर आपको दिखा देता हूँ। पहले हमने समरी दी है पूरे चैप्टर की, ब्रीफ में पॉइंट वाइज समरी दी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट चलिए सर। ये वो देने के बाद में फिर हमने इसमें एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है, उसका पूरा चैप्टर सॉल्यूशन दिया है। एक एक क्वेश्चन को उनको अच्छे से सोल्व किया है और बहुत एक्सपर्ट टीचर्स ने इनको लिखा है। किसी भी तरह की इसमें आप 2000, एक तरह से आप ये मान सकते हो 2013 से 2023 तक के ऑल क्वेश्चंस हमने इसके अंदर दिए हैं, सॉल्यूशन किया है, जो सीबीएसई बोर्ड पूछता रहता है।
तो 2013 से 2023 आप एक तरीके से 10 इयर्स भी बच्चे को खरीदना नहीं होगा, उसमें इसमें पूरे आपके सॉल्यूशन मिलेंगे, जहां जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके क्वेश्चन हमने उसी में दिए हैं। नेक्स्ट चलिए सर, आगे इसको दिखा देते हो थोड़ा सा। ये इस तरीके से चलते रहिए, जहां जरूरत होगी मैं वहां रुकाऊंगा। ये हमने जो है इसमें ये सीबीएसई प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस हमने पूरी तरीके से इसमें मैंने बताया, 2017 के, 19 के, 18 के, 23 के, जितने भी अभी तक पीछे इस तरह से क्वेश्चन आए हैं 2013 से 2023 तक। चलिए सर दिखाइए। तो उस तरीके के क्वेश्चंस हमने इसमें सभी दिए हैं। 2023 के भी हमने इसमें दिए हैं, आप 2023 देख रहे होंगे, तो 2023 का भी हमने इसमें सॉल्यूशन दिया है। सभी तरह के क्वेश्चंस हमने 22 के, 23 के, 21 के, जब भी एग्जाम हुआ सीबीएसई का, वो सभी क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं, ताकि बच्चे को एक 10 ईयर खरीदने की भी जरूरत ना हो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो, उस तरह के हमने इसमें सारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने इसके अंदर दिए हैं। जिस तरह के मैं आपको बता रहा था कि स्टेटमेंट संबंधी 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उस तरह के क्वेश्चंस की हमने इसमें अच्छी मात्रा दी है। इसमें इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिस तरह से एक रेशो टाइप के क्वेश्चंस, जैसा 14 नंबर का क्वेश्चन देख रहे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हमने दिए हैं। ये 2 कॉलम संबंधी क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं, नीचे कोडिंग दी रहती है कि इसका इससे मिलान करिए, फिर क्या कोडिंग में आंसर आपका ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। 16वां भी आप देख रहे होंगे, स्टेटमेंट संबंधी उसी तरह के क्वेश्चंस है, जो कि अब नए पैटर्न पर ये पूछे जाएंगे। यदि नए पैटर्न के क्वेश्चंस बच्चे नहीं करेंगे तो उनको निश्चित रूप से डिफिकल्टी होगी आने वाले पेपर्स में। तो इसलिए इस तरह की बुक्स यदि वे पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस वो करते हैं, तो करते करते उनका अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि वो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों से परिचित होंगे और उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे सामने किस तरह के क्वेश्चंस है। आप ये देख सकते हो, इसी तरह के क्वेश्चंस की मैंने इसमें भरमार करी है और काफी अच्छे। ये सीबीएसई 2023 में पूछे गया क्वेश्चन है, 22 में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये सोर्स बेस्ड नीचे क्वेश्चन है। चलिए सर थोड़ा और दिखाइए, ये चलिए रोता जी थोड़ा दिखाइए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आप इसमें देख सकते हैं, इस तरह के हमने इसमें कई क्वेश्चंस सोर्स बेस्ड के दिए हैं। चलिए सर नेक्स्ट आगे चलिए, चलते रहिए। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हमने दिए और फिर हमने इसमें जो है इस तरीके से ये हमारा, और जहां पर भी हमें इसमें सीयूईटी का हमने जहां जहां अंदर डाल सकते थे वहां अंदर डाले, अलग से भी इसमें दिया है। ये हमारा एक चैप्टर था जो कि हमने वो सीबीएसई सैंपल पेपर हम ऑलरेडी दिखाई चुके हैं। सर इसको बंद कर दीजिए। और अब हिस्ट्री का भी एक चैप्टर सैंपल खोल करके दिखा दीजिए। ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री में भी हमने सारे वही टॉपिक्स दिए हैं जो कि अब पूछे जाएंगे। कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक, कोई एक्स्ट्रा बात आपको हिस्ट्री से संबंधित इसमें बच्चों को नहीं मिलेगी। सीबीएसई बोर्ड पेपर 2022, सीबीएसई बोर्ड पेपर 2023, सीयूईटी 2022 और सीयूईटी 2023, सीयूईटी की बुक्स भी बच्चों को खरीदनी नहीं होगी अगर गोल्डन की बुक्स बच्चे खरीदते हैं, पढ़ते हैं तो इसी के साथ मैं इसका चैप्टर्स आगे आपको दिखा देता हूँ। सर आपका इस चैप्टर दिखा दीजिए। इसमें हमने सभी टॉपिक्स इसमें आगे चलिए, तो सारी चीजें जो भी इसमें सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो भी बन सकते थे, एनसीईआरटी की सोल्ड एक्सरसाइज। चलिए सर आगे चलिए, पूरी तरीके से चलते रहिए आप, पूरी तरीके से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। एक्स्ट्रा बीच बीच में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं सेल्फ असेसमेंट के लिए, सेल्फ रिवीजन के लिए, उसी संबंधित क्वेश्चंस हमने इसमें हाईलाइट की है, दिए हुए हैं। मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर है पूरी तरीके से अच्छे। एडिशनल हमने एनसीईआरटी की बुक्स में जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको सबको उठा करके उससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे, मान लीजिए कि पहला पॉइंट है सर थोड़ा सा, जैसे ये सेकंड उसके पहले चैप्टर के अंदर 2 है, 2.1 है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, उससे जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे छोटे बने, बड़े बने, शॉर्ट लॉन्ग, जो भी उस चैप्टर से, उस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर एक एक टॉपिक से उठा करके क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं। पूरी बुक्स इसी तरीके से बनी है। आगे चलिए सर, ये सैंपल चैप्टर्स मैं इस पे जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप देख सके कि बुक्स में ये सभी टॉपिक्स उसी तरीके से आएंगे। 4.2 है, 5 है,
5.2 है, जो भी उनसे सिमिलर क्वेश्चंस है, किस तरीके से सीबीएसई में पूछे जाते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आगे चलिए सर, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब हमने इसमें दिए हैं। किसी का कोई यदि क्वेश्चन है तो वो चौहान सर से पूछ सकते हैं, और कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर किसी का क्वेश्चन है तो यशवंत चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब एक बार फिर से दर्शन दीजिए, आपकी बारी आ गई है, अगर कुछ क्वेश्चन आता है तो प्लीज। सर थैंक यू सो मच सर। इस तरीके से यदि ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, वो हमारे साथ पैनल पे उपस्थित है। ये सभी को एक ई सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा, जो कि इसके तुरंत बाद जो वेबिनार में, जैसे ही वेबिनार खत्म होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम सर्टिफिकेट्स के लिए एक फीडबैक फॉर्म डालेंगे। उस फीडबैक फॉर्म को जैसे ही आप भर के सबमिट करेंगे तो आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा नीचे चल के, और उस डाउनलोड जैसे आप करेंगे तो आपके लिए वो सर्टिफिकेट उसमें डाउनलोड हो जाएगा। यदि फिर भी आपको कोई किसी तरह की दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो आप हमारी editorial@newagepublicers.com की वेबसाइट पर आप लिख सकते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट्स बना करके और हमारे जो ऑफिशियल कर्मचारी है वो आपको भेज देंगे और आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं होने देगी। और इसकी आपको स्पेसिमेन कॉपी भी दी जाएगी, और स्पेसिमेन कॉपी के लिए आपको हमारी जो मेल आईडी है specimen@newagepublicers.com, स्पेसिमेन अभी आपके उस पर आ जाएगी स्क्रीन पर, और हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको शेयर करेंगे। specimen@newagepublicers.com पर आप अपनी स्पेसिमेन कॉपी की रिक्वेस्टमेंट हमें भेज सकते हैं। जो भी जिसकी भी रिक्वेस्ट आएगी हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, वो हम उसको पहुंचा देंगे, और बहुत क्विकली हमारा काम होता है। इसमें किसी भी अध्यापक को ये नहीं रखा जाएगा, इससे वंचित नहीं रखा जाएगा। जिसकी भी रिक्वायर होगी तो उसको ये कॉपियां मिलेगी। कोई क्वेश्चन सर है रोहताज जी आपको? कोई नहीं सर, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए ठीक है। तो आदरणीय साथियों, अब मैं ये वेबिनार जो है समाप्ति की ओर, समय भी काफी हो गया है और समाप्त करने जा रहा हूँ। प्यारे शिक्षकों, सभी से अब जुदा होने का समय आ गया है। आज थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आपने देखा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे और हमें भी उसके लिए खेद है। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए किसी को भी कुछ ज्यादा ठहराया नहीं जा सकता जिम्मेदार। आपको पता ही है, जीवन में कुछ भी कभी भी घटित हो जाता है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आपको कुछ दिक्कतें झेलनी पड़ी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाद में डॉक्टर यशवंत चौहान जी, जो कि एक अच्छे स्पीकर और वक्ता है, बहुत ही अच्छे एक ज्योग्राफी के जानकार है, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको दी। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो भी आज हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर के शर्मा जी का भी, क्योंकि वो नहीं जुड़ पाए लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास किया। उसके बाद मैं यशवंत चौहान जी का बड़े दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने ज्योग्राफी जैसे विषय को, एक कठिन विषय को एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया। और अंत में मैं धन्यवाद दूंगा न्यू एज पब्लिकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सौम्य गुप्ता जी को, जिन्होंने इस वेबिनार को आयोजन कराया और समय समय पर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी देने के लिए हम ऐसे वेबिनार करते रहेंगे। आप कृपया इस ग्रुप को ना छोड़े। हम इसमें जो भी संबंधित जानकारी होगी इसमें हम शेयर करते रहेंगे। पेपर्स वगैरह और कोई भी किसी तरह की जानकारी सीबीएसई एनसीईआरटी की तरफ से आती है तो वो हम इसमें अवेलेबल कराएंगे। और मैं जैसे कि आपको बता ही चुका हूं कि हमारी ईमेल आईडी specimen@newagepublicers.com पर आप अपना पूरा एड्रेस और पिन कोड सहित भेजेंगे और अपने पुस्तकों का पूर्ण विवरण देंगे, तो हम आपको पुस्तकें आपके घर पर बाय पोस्ट आपके पास भेजेंगे। और ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों का प्यार और स्नेह सदैव हमारे साथ बना रहेगा। इसी के साथ हम आज की इस शुभ संध्या पर आप सभी से हाथ जोड़ करके विदाई लेते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ रात्रि। सर मैं एक लाइन बोलूंगा। जी सर बोलिए सर, बोलिए प्लीज। सर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द टीचर्स, जितने भी लर्नड टीचर मेरे ग्रुप में जुड़े हुए,
जी सर। थैंक्स टू गोल्डन पब्लिकेशंस कि आपने एक ग्रुप बनाया, कम से कम हम सबको गेट टुगेदर में, मतलब यू ऑल हैव इनवाइटेड अस, हमने सब में ज्वाइन किया। कभी भी किसी भी कोई प्रॉब्लम हो, एटलीस्ट वी कैन शेयर विद ईच अदर। आई थिंक डिफरेंट स्टेट से जुड़े हुए हमारे पास सारे के सारे टीचर्स हैं हम, एंड वी आर रेडी टू हेल्प ईच अदर। तो थैंक यू सो मच सर। वी विश सर बहुत बहुत आभार सर आपका, और आप जैसे जो है गणमान्य और श्रेष्ठ अध्यापकों के कारण ही ये समाज आगे बढ़ रहा है और चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। और सदैव हम जब भी कभी इस तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी की जरूरत हमें पड़ेगी, सदैव हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपका सदैव आदर करेंगे। धन्यवाद सर, और नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। पढ़ाई हो जो करनी, पढ़ाई हो जो करनी, जरा भी ना घबराना, जरा भी ना घबराना। गोल्डन बुक्स को अपनाना, अपना इंडिया, गोल्डन बुक्स का दीवाना। कक्षा विषय कोई हो, आसान समझ पाना, गोल्डन ही तो है सफलता का पैमाना। गोल्डन ही ला रहा है, चेहरे पे मुस्कुराना, चेहरे पे मुस्कुराना। मैं गोल्डन का दीवाना, अपना इंडिया, बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना, गोल्डन बुक्स का दीवाना। Golden presents the best-selling reference books for history for classes 11th and 12th. Main features of Golden Books are: all the books are based on latest NCERT textbooks and are as per the latest syllabus of CBSE. Important points have been given for each chapter for quick revision. Solution of all the NCERT textual exercises are given. Other important questions for practice and examinations are also given in a very simple language. Objective type question bank is given, which include MCQs with answers. The Golden Books suit all the pockets and are a boon for the weak, mediocre and intelligent students alike. Buy Golden Books for your golden future.